Hello everyone, welcome back to Kaushal BioPrep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of limnology, that is inorganic carbon in water, something related to the pH, alkalinity, and free carbon dioxide. Right? So let's get started. First of all, inorganic carbon जो है aquatic system में है, that plays a very important role in buffering capacity, biological productivity, and overall water chemistry. तो बफरिंग में काम करता है, दैट मीन्स पीएच से कुछ लेना देना है इसका, और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्योंकि डायरेक्टली कार्बन किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और ओवरऑल वाटर केमिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है. And the primary inorganic carbon species that you can found in the water, that includes carbon dioxide CO2 की फॉर्म में, bicarbonate that is HCO3 negative, and carbonate that is CO3 2 negative. These three exist in equilibrium and they are influenced by the factors like pH, temperature, and biological activity. So all these three are the form of the carbon and they are in equilibrium. और अगर कुछ भी आप कह लीजिए इम्बैलेंस होगा तो इनका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू नो कि कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ा है या कम हुआ है. ठीक है, नाउ ये जो कंसंट्रेशन रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का, ये भी बताता है किस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ है. इज दैट अल्कलाइन एनवायरनमेंट और एसिडिक एनवायरनमेंट, समथिंग लाइक दैट. विल डिस्कस दैट. So if you understand pH, alkalinity, and free CO2, so this makes you also assess the ecosystem health, carbon cycling, and aquatic life sustainability. Right now, let's talk about pH. So pH, what is pH? pH is logarithmic value of hydrogen ion concentration in water. So you determine the relative proportion of different inorganic carbon species in water विद द हेल्प ऑफ द पीएच. राइट, सो H पॉजिटिव जो है इसका नेगेटिव लॉग जब आप लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं तो कैसे लिखते हैं पीएच को? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन. राइट, सो नेचुरल वाटर जो है वहाँ पे टिपिकली पीएच इज इन न्यूट्रल रेंज, 6 से 9 के बीच में जो है वो रेंज है, और न्यूट्रल पीएच एग्जैक्टली 7 पीएच को बोलते हैं. 7 से नीचे अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज़ एसिडिक, एंड 7 से आगे बात करें तो दिस इज अल्कलाइन. राइट, and now the pH of the water is also influenced by the biological activities such as photosynthesis, respiration, and others. Right, and the pH is also influenced by the anthropogenic inputs. Now let's we talk about the carbonate system equilibria. As I have already told you कि CO2 है एक फॉर्म है आपका bicarbonate, and then there is this form carbonate. तो ये आपस में किस तरह से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एंड हाउ दे बेसिकली टेल यू अबाउट द स्पीसीज ऑफ दैट एक्वेटिक सिस्टम. सो 3 प्राइमरी फॉर्म्स आर देयर. तो रिलेटिव डोमिनेंस ऑफ दीज स्पीसीज डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑल्सो. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पीएच विच इज लेस देन 4.5, so that means this is highly acidic pH. This water body is dominated by the free carbon dioxide and carbonic acid. Right, सो दैट मीन्स आपको पीएच से भी पता लग जाएगा किस टाइप का कार्बन फॉर्म जो है उस वाटर बॉडी में डोमिनेट कर रहा है. देन इफ द पीएच इज इन बिटवीन 6 to 8.5, दैट मीन्स बाइकार्बोनेट इज इन डोमिनेट स्पीसीज, and if pH is greater than 9, highly alkaline, that means carbonate becomes the significant form of the carbon in that aquatic system. So with the help of pH you can get an idea what form of carbon or inorganic carbon exists in that particular aquatic system. Right, now the alkalinity and buffering capacity. Alkalinity is the water's ability to neutralize the acid and resist the pH change. Right, buffering basically यही होता है. बफरिंग कैपेसिटी में आप कह लीजिए पीएच को रेजिस्ट करता है वो. एल्कलिनिटी जो है दैट इज़ द वाटर्स एबिलिटी टू डू द सेम थिंग. राइट, नाउ इट इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, एंड हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहाँ पे 3 आयन्स की बात चल रही है जिससे आप एल्कलिनिटी या बफरिंग कैपेसिटी को स्टडी करेंगे. बाइकार्बोनेट है, उसमें कार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड आयन है. ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द मिलीग्राम पर लीटर. राइट, mg पर लीटर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं. एल्कलिनिटी जो है इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4, HCl, and to specific end point pH, and though typically that pH is 4.5. तो अगर आपने डिटरमाइन करना है तो you need to titrate that particular solution with strong acid to a specific endpoint pH. Right, now the total alkalinity can be categorized as bicarbonate alkalinity,
कार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड हाइड्रोक्साइड एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी में भी 3 टाइप आ गए। अगेन अब हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर आप 6 to 9 की रेंज में pH की बात करें, दैट मीन्स बाइकार्बोनेट इज मोर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। तो ये किस पे डोमिनेट होगी? इन द pH विच इज रेंजेस फ्रॉम 6 to 9, एंड इफ pH इज ग्रेटर देन 9 देन देर इज कार्बोनेट एल्कलिनिटी, एंड इट at a very very high pH values it is hydroxide alkalinity, right? तो ये वेरी कर जाएगा according to the pH. Now let's come to the free carbon dioxide in aquatic system. So there are multiple sources of free carbon dioxide. Number one is the atmospheric diffusion, then comes the respiration and decomposition, and then the photosynthesis. So if we talk about the sources, atmospheric diffusion is the primary source. तो CO2 is dissolved in water from the air, because अगर मान लीजिए ये पॉन्ड है या कोई भी स्टैटिक वाटर बॉडी है, फ्लोइंग वाटर बॉडी है, उसका एटमॉस्फेयर के साथ इंटरफेस है, तो यहाँ से CO2 जो है वो डिफ्यूज करेगा इनटू दी that particular water body, and this diffusion is also influenced by the temperature and the partial pressure, right? Then there is respiration and decomposition. So organic matter breakdowns by organism and that releases the CO2, and that is how the respiration and decomposition contributes in to the CO2 level of the water body. Then finally there is photosynthesis. So aquatic plant and algae consume CO2, shifting the carbonate equilibrium. तो ये CO2 को यूज़ कर लेगा। तो हमने जहाँ पे 3 फॉर्म पढ़ी हैं, CO2 HCO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये यूज़ करेगा। तो ये वैसे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए इस तरह से, है ना, लेकिन ये इक्विलिब्रिया को शिफ्ट कर देगा बिकॉज ये जो है अब कम हो जाएगा CO2, ठीक है। Then finally there is the measurement of the free CO2. How you measure it? So it is determined by the titration method or calculated from the pH and alkalinity using the equilibrium equation. अभी मैंने आपको बताया कि तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं. And Henry's law governs the CO2 solubility. Now what is Henry's law? So here it is dissolved CO2. यहाँ पे आप मानिए जी हम 3-4 चीज़ों की बात करते हैं हेनरीज लॉ में. नंबर 1 इज़ द डिजॉल्व CO2 concentration. Then there is Henry's constant, and then there is partial pressure of the CO2 in the atmosphere. So basically Henry law ये कहता है कि the solubility of a gas, basically the CO2, is directly proportional to the partial pressure of the CO2 above the liquid, right? तो पार्शियल प्रेशर, तभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को कंसीडर किया गया. तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर को मान लीजिए आई टेक H फॉर इट और या P फॉर इट, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर है, राइट. बट ये प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप हटाएंगे तो यू विल फाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है. लेट्स टॉक एट H ही लेते हैं उसको, क्योंकि एज इन द स्टेटमेंट इट इज़ H, जो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है हेनरी लॉ का, उसमें H ही लिया गया है, ठीक है. सो H यहाँ पे क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 in atmosphere. This is the dissolved CO2 concentration. Now what is it? This is the Henry constant. ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, the solubility of CO2 basically which is dissolving in the water is directly proportional to the partial pressure of the CO2 above the water, right. ऊपर कितना है, सरफेस पे कितना है, उस पर डिपेंड करेगा. अगर वो ज़्यादा है तो डिजॉल्व अच्छे से होगी, अगर कम है तो डिजॉल्व कम होगी. ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉलिबिलिटी ऑफ एनी गैस, राइट. नाउ द रोल ऑफ फ्री CO2 इन लिम्नोलॉजी, ये तो बहुत ही सिंपल है. दिस इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए CO2 को फिक्स करना पड़ता है, सो दैट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन एक्चुअली आकर. सो इट इन्फ्लुएंस द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. CO2 प्लस H2O को यूज़ किया जाता है, तभी शुगर्स और जो है आपका एनर्जी जो है वो बनता है, ठीक है. बेसिक प्रोसेस. देन इट ऑल्सो कंट्रोल्स द pH फ्लक्चुएशन इन वाटर बॉडीज, एज वी हैव सीन कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द CO2, तो वो आपस में चेंज होंगी, तो pH फ्लक्चुएशन देख सकते हो आप. हाई CO2 लेवल इंडिकेट द रेस्पिरेटरी डोमिनेंस which is common in the eutrophic water, while the low CO2 suggests the high photosynthetic activity, ठीक है. क्योंकि अगर CO2 कम है तो high photosynthetic activity कैसे, because it is consuming that CO2, right. Then there is interrelationship and ecological significance. So pH, alkalinity and CO2 are independent. Alkalinity buffers pH while CO2 contributes to acidity. ये ध्यान रखेंगे, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट है. alkalinity जो है वो बफर करता है pH को, लेकिन CO2 जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एसिडिटी में. जहाँ पे भी CO2 का लेवल ज़्यादा है एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है. ना फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइकिल अगर हम बात करें तो डे लाइट में फोटोसिंथेसिस इज मोर, तो दिस रिमूव CO2, इट इंक्रीजेज द pH, वाइल
the respiration at night will releases the CO2, and wherever the CO2 is present there is a decrease in the pH, right? Then there is anthropogenic impact, AC drain pollution and land uses, जो जितना भी हो रहा है पोल्यूशन उसकी वजह से क्या है, इट चेंजेस द कार्बोनेट इक्विलिब्रियम, ये 3 फॉर्म्स में आपस में चेंज आएगा और इसकी वजह से जो है एक्वाटिक जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? तो यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर क्लियरली, देखिए अगर हम पीएच और स्पीसीज फ्रैक्शन को लें तो pH is in x-axis, y-axis is species fraction. So you can see clearly the blue line indicates the bicarbonate, and then there is red line which is indicating the carbonate, and the black line is indicating the dissolved CO2. So where is pH low pH पे आपको क्या दिख रहा है, dissolved CO2 is the नंबर 1, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम कंसेंट आप कह लीजिए स्पीसीज फ्रैक्शन उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? स्पीसीज फ्रैक्शन अब ये कोई वो नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की बात नहीं चल रही, CO2 के डिफरेंट फॉर्म्स की बात चल रही है। तो ज़्यादा कौन सी है उस टाइम पे, लो पीएच पे CO2 ज़्यादा है, ठीक है, ये CO2 है। लेकिन वहीं पे जैसे जैसे पीएच को चेंज करते हैं तो जब आप मिडल पे आ गए, देखिए यहाँ से अब 6 से 9 के रेंज में जा रहे हैं तो ब्लू लाइन सबसे ऊपर है, दिस इज़ दी बायकार्बोनेट, तो बायकार्बोनेट प्रिडोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैक्सिमम पीएच जब आप हिट कर रहे हैं 10, 11, 12, तो वहाँ पे जो है रेड लाइन सबसे ऊपर है और ये CO2 वाला लाइन तो बिल्कुल ही नीचे गिर गया, तो दिस इज़ दी कार्बोनेट, ठीक है? ये है इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ CO2 एग्जिस्ट, राइट? सो टू कंक्लूड इट, CO2 जो है इनऑर्गेनिक कार्बन जो है, अगर मान लीजिए CO2 तो नहीं, इनऑर्गेनिक कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन देयर इज़ डायनेमिसिटी, दैट मीन्स इट चेंजेस, और वहाँ पे पीएच, एल्कलिनिटी और अदर चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप पीएच या एल्कलिनिटी से डील कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दी CO2 लेवल इन द वाटर बॉडी बाय कोरिलेटिंग इट, ठीक है? और किस तरह की फॉर्म वहाँ प्रेजेंट है, एंड दिस फ्री CO2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम बिकॉज इसका डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन है इनटू द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू वांट टू मॉनिटर द CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन any aquatic system or inorganic carbon, so you can look for the pH and alkalinity of that particular system, right? और इससे आप जो है इकोलॉजिकल चेंजेस या फिर आप कह लीजिए एक्वाटिक रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन इंड्यूस जो डिस्टर्बेंस इन द फ्रेश वाटर सिस्टम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, साथ में मिटिगेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी? So that is it for today's lecture. Thank you so much for watching the lecture till here. If you like this session, you can like the video, comment down your views or queries, and if you have some suggestion you can comment down that also. Share it with your friends and subscribe to the channel to help the channel stay connected for upcoming lectures. I will see you all in the next video. Thank you.